Yes, dear students, welcome to all of you once again in this session. And this is the revision part 3. And here again we are going to discuss that how to solve numericals based on combination of registers. And this is another interesting session and it is different from the previous session. ठीक है, ये पहले वाले सेशन से इसमें क्वेश्चन डिफरेंट है एंड एट द एंड वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू. एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप सॉल्व करेंगे एंड आई हैव गिवन माय ईमेल एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, उस पर आप आंसर्स मेल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर्स शेयर करते हुए. ओके, बट डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड wherever you like any point in the video, do press the like button because आपकी लाइकिंग से ही इस वीडियो को लाइकिंग बढ़ेगा एंड यू शुड शेयर नॉलेज, है ना. तो नॉलेज मस्ट बी शेयर्ड. So do share your knowledge, continue to protect environment, continue to save water, okay, air, and continue to progress with good health. So now let's start the session and move towards whiteboard. Okay, and it is humble request, do note down the questions in the notebook and साथ साथ करिए और कोशिश करिए कि हमसे आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. Then actual learning will be there. Okay, thanks to all of you. Now let's move. In last session we discussed one numerical and it had 5 parts. ठीक है, और इसको हमने सीखा how to solve the numerical in notebook and then how to attempt the question in board exam. In this session also we are going to discuss one question and it has also various parts and you will find if you solve this numerical on your own, so you will be able to solve numericals in board exam also and then you can get good marks. Okay, so without wasting time, let's start the session and I'm going to write the question on the board. Okay, and then side by side I expect you will be solving in the notebook. Okay, yes, so let's start the session. So this is a question which we are going to do. So question है कि in the given circuit diagram find 1 2 3 4 5 हमको चीजें निकालनी है. The effective resistance, the total current in the circuit, the reading of voltmeter and the reading of voltmeter V2 and the current in resistors 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. इन सारे रेजिस्टर्स में हमें करंट भी फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए इसमें जो वोल्टमीटर है, तो ये जो वोल्टमीटर है ये हमारा है V1. दिस इज V1 and this voltmeter is V2 and the direction of current is always from positive to negative. ये आपको शो करना होगा सर्किट में. Same way current is here, then here it is divided into how many parts? 3 parts में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, एंड जितना करंट यहाँ पर जाएगा उतना ही करंट यहाँ से वापस आ रहा है. राइट, and this is the key. So first of all we need to find effective resistance of the circuit. So now let's find the effective resistance of the circuit. So here you can see 15 ohm and 4 ohm ये कैसे हैं? These are in series. और ये तीनों क्या देखिए यहाँ पर करंट आया. Now there are 3 paths. तीनों पाथ पर जाना है करंट को. It is divided here. So here these 3 are in parallel. और उसको शुरू करने से पहले मीन्स न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हमें क्या लिखना होगा? गिवन लिखना होगा. देन टू फाइंड ये चीजें आएंगी उसमें. गिवन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 60 वोल्ट. R1, R2, R3, R4, R5 ये भी आपको लिखना है ना. तो गिवन में लिख लेंगे कि R1 कितना है, R2 कितना है एंड देन R3, R4 एंड देन R5. ओके, इसके बाद लिखेंगे वोल्टेज कितना है. देन वी शैल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. ओके, यस, तो नाउ राइट डाउन. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन वैल्यू ऑफ R1. तो R1 कितना है हम भी लिख देते हैं. दिस इज 15 ohm and R2 is 4 ohm, R3 is 2 ohm and R4 is 3 ohm and R5 is 6 ohm. अगर आप बोर्ड के एग्जाम में इतना भी लिख देंगे, अगर क्वेश्चन आपको किसी वजह से नहीं आ पा रहा है या टाइम शॉर्ट है, तो देन यू आर गोइंग टू गेट हाफ मार्क. एंड हियर V पोटेंशियल डिफरेंस इट इज हाउ मच? 60 वोल्ट. So now, okay, now potential difference across the circuit is here 60 volt. So potential difference across circuit
is 60 volt across circuit पूरा, ठीक, okay, and key is on, current is passing through the circuit. So this is the actual direction of the current. ये पॉजिटिव है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है ना. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव है तो विच एंड ऑफ वॉटमीटर इज दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव होगा एंड दिस इज V1 वॉटमीटर, ये नेगेटिव, एंड देन अगेन दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, एंड नेगेटिव, and it is connected to negative. Negative is connected to negative, positive is connected to positive. Again I repeat, this is very very important to understand and note down. Okay. So now let's start the question. तो to find लिख लेंगे, उसके बाद में solution. Okay. तो now solution शुरू करते हैं. Solution. तो देखिए 15 ohm and 4 ohm ये कैसे हैं? These are connected in series. क्योंकि करंट यहां से गया और उसके बाद में यहाँ एक ही पाथ है, यहां तक पहुंचने का पाथ एक ही है. तो therefore these 15 and 4 ohm are in series. So first we find the effective resistance of these two. Okay, so here we write down R1 and R2 are in series. So therefore effective resistance कितना होगा सीरीज में? ये हो जाएगा R1 plus R2 is equal to 15 plus 4 and it is 19 ohm. Okay, तो 15 plus 4 कितना आ गया हमारा? 19 ohm. अब इसके बाद में हमें ये आ गया, तो करंट यहां से पहुंचा यहां, और यहां देखिए 3 पाथ, there are 3 paths. तो ये आप एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सर्किट डायग्राम अगर आपको नहीं दिया तो बना लेते हैं, अगर सर्किट डायग्राम दिया है तो उसमें पेंसिल से आप ऐसे मार्क कर सकते हैं. So when current is divided here, so this means these three are in parallel. ठीक है, तो अब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो नाउ लिखेंगे R3, R4 and R5 are in parallel. Okay, तो therefore इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब फार्मूला अलग हो जाएगा. पहले हमने जो सेशन था उसमें 2 रजिस्टर थे, है ना, तो उसमें R1 into R2 upon R1 plus R2 लिया था. इसमें 3 है, तो we shall go for this. 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ओके, तो फाइंड करेंगे इसको. तो therefore कितना हो जाएगा? 1 upon RP is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6. And find it. सॉल्व करिए इसको, कितना आता है देखिए. यस, व्हाट इज द आंसर? एलसीएम विल बी हियर 6. 2 3 जा 6, 3 आएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6. तो कितना आएगा इसमें टोटल? हियर इट कम्स आउट टू बी 1 upon RP comes out to be 6 upon 6 is equal, therefore RP will be is equal to 1 ohm. ठीक, इसका एलसीएम निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं. तो थोड़ा सा काम खुद भी करेंगे. ओके, एनी प्रॉब्लम है? अब देखिए ये हमारा इनका आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का आ गया एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का आ गया. तो हियर इट इज 1 ohm. इन तीनों को हटा दें और उनकी जगह हम एक रेजिस्टर लगा दें 1 ohm का, तो वही काम करेगा जितना काम ये 2 3 एंड 6 ohm के रेजिस्टर्स कर रहे हैं. समझे? अब ये देखिए 15 एंड 4 इनको भी रिमूव कर दें, तो इनकी जगह हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, दैट इज ऑफ 19 ohm. तो दैट विल वर्क द सेम व्हिच इज बीइंग डन बाय 15 ohm एंड 4 ohm. अब 19 एंड 1 देखिए, 19 का और यहां पे 1, तो ये दोनों फिर क्या होंगे? सीरीज में होंगे, है ना. तो यहां लिखेंगे 19 ohm एंड 1 ohm, ये जो आया, तो दीज आर अगेन इन सीरीज. तो देयरफॉर वी फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो मैं रब इट नाउ, इसको रब कर दें. ओके, तो ना RS, ये जो हमने निकाला था RS है ना, टोटल कितना था? 19, और यहां पर RP निकाला, दिस इज हाउ मच? 1 ohm. RP is 1 ohm. So RS and RP are in series. Okay, so therefore effective resistance कितना हो जाएगा? Effective resistance, तो यहां पे हम E लिख दें. Effective resistance it will be equal to RS plus RP and it will be 15 plus 1.
15 plus 1, yes, 15 plus 1 ही आएगा ना, नो 15 plus 4 कितना था 19, 19 plus 1 it is 19, okay, so 19 plus 1 it will be how much, 20 ohm, okay, it will be how much, 20 ohm, right, Soumya it is how much, 20 ohm, so 20 ohm आ गया, Soumya has written the answer 20 ohm, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ohm, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया, दिस इज 20 ओम, तो सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज डन, सो ए का आंसर आ गया, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हाउ मच, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो यहां आपको एक नंबर मिल गया, ओके, 20 ओम आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो अब क्या है, V दिया हमको, तो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करिए, हरी अप, आई एम गोइंग टू रब इट एंड देन यू इन द मीन टाइम यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, तो नाउ सेकंड इज द टोटल करंट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने यहां पे लिख दिया है ना, क्योंकि आगे इस पर रब करना पड़ रहा है, आगे हमें यहां से मालूम चल जाएगा, तो नाउ सेकंड पार्ट, तो B लिख देंगे हम, तो A पहला हो गया, नाउ वी आर राइटिंग हियर B, द टोटल करंट वी नीड टू फाइंड, ओके, यहां लिख देते हैं द करंट इन द सर्किट, तो देखिए करंट इन द सर्किट फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या चलेगा, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, ओके, हमको I फाइंड करना है, सो I फाइंड करना है, V इज हम गिवन 60 है, R हम नो फाइंड हो गया है, ठीक है, तो आगे हम I को फाइंड कर सकते हैं, सो V की वैल्यू कितनी है टोटल, इट इज 60, तो यहां रखेंगे हम 60, I हमको फाइंड करना है टोटल, तो हियर वी नीड टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया था, 20, है ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहां पर हम रखेंगे, यहां दोबारा इसको कर सकते हैं ऐसे, तो V हमको गिवन है, I हमको फाइंड करना है, तो यहां पे हम लेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE, V का वैल्यू 60, I हमको फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाला 20, तो इट विल बी हियर हाउ मच, तो 21 23 सर, देयरफॉर I हमारा आ गया 3 एंपियर, I इज हाउ मच 3 एंपियर, तो ऐसे आप ब्लॉक बना दें, है ना, इसमें आंसर आ गया 3 एंपियर, सो द करंट इसमें लिखेंगे, देयरफॉर the total current in the circuit is how much, it is 3 ampere, तो 3 एम्पियर का करंट यहां से शुरू होगा, 3 एम्पियर इसमें आएगा, 3 एम्पियर इसमें आएगा, 3 एम्पियर का करंट जब यहां पर आता है, तो ये 3 एम्पियर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली करंट इसमें डिवाइड हो जाता है ना, यस, और एक अगर आप याद करें, हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां V कांस्टेंट है ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यहां पर उसमें करंट क्या होगा, कम होगा, तो सबसे ज्यादा करंट किसमें पास होगा, 2 ओम में, उससे कम इसमें, और सबसे कम करंट होगा 6 ओम में, तो दिस मेथड इज आल्सो ओके यूज्ड टू फाइंड द आंसर्स, ओके, कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप हम कर चुके हैं, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, अगर ये लाइक किया है तो लाइक कर देना वीडियो को भी, ठीक, तो I इज इक्वल टू VR, V इज कांस्टेंट है, तो I एंड R रेसिप्रोकल है, तो R इंक्रीज होगा तो I क्या होगा, करंट कम होगा, तो सबसे कम करंट आएगा 6 ओम में, ध्यान रखिएगा, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक, 3 एम्पियर आ गया, तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, और वापस यहाँ पर भी निकल के कितना आएगा, 3 एम्पियर, अगर यहाँ अमीटर लगा होगा तो दैट विल गिव यू रीडिंग हाउ मच, 3 एम्पियर का ही रीडिंग देगा, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1, इसका रीडिंग निकालना है, वोल्टमीटर V1 का रीडिंग निकालना है, तो इसको कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं, ओके, डन, तो मे रब इट नाउ, ओके, सो नाउ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1, एनी वन ऑफ यू, किसने किया, नो, ओके, अंकिता हैज डन, ओके, गुड,
देखिए कैसे निकालेंगे, V निकालना है एंड ये देखिए वोल्ट मीटर मींस पोटेंशियल अक्रॉस 15 ओम निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम, ठीक है। सो यहां क्या है और यहां पर कितना होगा, ओके, तो यहां डिफरेंस कितना होगा, तो फार्मूला सिंपल, यही V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, अमीटर रीडिंग, अमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो यहां 15 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर रीडिंग देगा। तो यहां पर फाइंड करेंगे, यहां पर सिंस लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, तो V इक्वल टू IR, ये हमको मालूम है, V हमको निकालना है, तो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू I इंटू R, R1 कितना है, this is R1, तो therefore V1 will be equal to I कितना था 3 एम्पियर, R1 की वैल्यू कितनी है 15 ओम, तो हमारा कितना आ गया 45 वोल्ट, तो हमारा V1 का जो रीडिंग आया, वोल्ट मीटर V1 का रीडिंग कितना आ गया 45 वोल्ट, यहां लिख देंगे, so therefore the reading of V1 is equal to 45 वोल्ट, ओके। सो देखिए इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अक्रॉस इट्स एंड्स 45, तो आउट ऑफ 60 इसके 45 आ गया। अब इसमें कितना होगा, दिस वी नीड टू फाइंड, सिमिलरली इसको फाइंड कर सकते हैं, आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव डन इट, यस, तो ये 45 आ गया, जस्ट फाइंड आउट क्विकली ये V2 का रीडिंग कितना होगा, ठीक, हरी अप। तो V1 हमारा कितना आ गया, टोटल करंट आया था हमारा 3 एम्पियर एंड V1 इज हाउ मच 45, V आ गया। V2 फाइंड करिए फटाफट, क्विकली फाइंड आउट V2। हाँ, तो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा कि V2 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 वोल्ट मीटर, ठीक है। सो करंट कितना है टोटल 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है ये 4 ओम है, सो कितना आंसर आएगा 4 3 जा 12, सो V2 का वैल्यू कितना है आपका 12, ठीक है। तो हम भी शुरू करते हैं आपको, चलिए, तो हियर लिखेंगे सिंस वी नो V इक्वल टू IR, सो V2 फाइंड करना है, तो देयरफॉर V2 I की वैल्यू कितनी है, यहां रखेंगे R इज हियर, दिस इज R1, दिस इज R2, सो ये R2 है, ठीक है। तो V2 विल बी I कितना है 3 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 4, तो इट इज 12 वोल्ट, ओके। सो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 का कितना आया, यहां लिख देंगे, देयरफॉर द रीडिंग ऑफ V2 is equal to 12 volt, okay, it's very simple, तो physics is really interesting, okay, and it's simple also। अगर आपको टीचर ही कहते हैं कि इट्स वेरी टफ, तो आपको टफ लगेगा, ओके, आई से इट इज वेरी वेरी इजी, एंड बिकॉज ऑफ फिजिक्स आई एम रीचिंग टू यू एंड यू आर कनेक्टेड टू मी, ओके। सो 12 वोल्ट हो गया। अब आगे चलना है हमको कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है 2 3 6, इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इनका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, कितना इनके लिए बचा, तो दिस वी नीड टू फाइंड। आई एम श्योर जैसे फर्स्ट सेशन में हमने इससे पहले वाले सेशन में किया था, वैसे ही इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करें, ओके, इसको नोट कर लीजिए, ओके, डन, नाउ मेक अ इट, ओके, ओके, नाउ वी फाइंड नीड टू फाइंड द करंट इन रेजिस्टर 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट कितना होगा। इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे इससे पहले सेशन में, उसमें हमने 2 रेजिस्टर लिए थे, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, तो हियर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 45 हो गया, इसके अक्रॉस 12 हो गया, टोटल में कितना था 60, सो ये यूज हो गया, तो इसके लिए कितना बचा, तो वी नीड टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहां लिखते हैं दिस इज C एंड दिस इज D, तो वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अक्रॉस C एंड D, ओके। तो ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो लिखते हैं यहां पर now potential difference
अक्रॉस सी एंड डी। ठीक, तो कितना होगा देखिए, तो दिस वी सी डी के लिए कितना होगा, टोटल हमारा जो वी है, टोटल वी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ये V1 प्लस V2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल V कितना था हमारा 60 माइनस V1 कितना है 45 प्लस 12, तो इन दोनों को ऐड किया, व्हाट डू वी गेट, 60 माइनस 5 to 7 एंड दिस, व्हाट डू वी गेट हियर 3 वोल्ट हमारे पास आ गया, दिस इज 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट में से करंट इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, ये हमको फाइंड करना है। अब आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो VCD हमारा आ गया 3 वोल्ट। अब फाइंड करेंगे हम करंट इन 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. So start doing it. Hurry up. In the meantime, I'm going to rub it. So now first we shall find out the current in 2 ohm, फिर find करेंगे 3 ohm and then 6 ohm. I expect that some of you must be doing it, है ना, और कुछ ने कर भी लिया होगा। Good. So here, तो first हम find करते हैं करंट इन ये R1, R2, R3 था, करंट इन R3। ओके, R3 फार्मूला वही लिखेंगे, V इक्वल टू IR। कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए, है ना, ओम्स लॉ से मिला तो V कितना है हमारे पास यहाँ पर, तो V अक्रॉस CD जो है, और I हमको फाइंड करना है। ठीक है, I हमको फाइंड करना है 1 में इंटू R3, तो VCD कितना आया था हमारा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। ओके, ये हमको 3 वोल्ट आया था। I हमको फाइंड करना है, तो I1 इंटू R3, R3 कितना था 2, तो देयरफॉर I1 इज 3/2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो हमने यहां से एक स्टेप ऐसे छोड़ दिया, सो I1 विल बी इक्वल टू 3/2, 1.5 एम्पियर। तो यहां पर जो करंट है I1, तो दिस इज हाउ मच 1.5 एम्पियर। जो 3 एम्पियर का करंट है उसमें से 1.5 इधर चला गया, 3 में से 1.5 इधर चला गया। ठीक, अब कितना बचा है 1.5, तो 1.5 अमाउंट ऑफ करंट जो है वो 3 और 6 के बीच में डिवाइड होगा, तब उसको फाइंड करेंगे। इसको नोट कर लीजिए तब तक। यस, डन। ओके, अंकिता इज राइटिंग सर आई हैव गॉट द आंसर फॉर 3 and 6। गुड, अभी देखते हैं आपका सही है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। तो नाउ करंट इन R4, तो R4 में करंट निकालना है ना, सो R4 हमारा 3 ohm है, तो R4 इज हियर 3 ohm। तो यहां वही यूज करेंगे फार्मूला, सिंस V इक्वल टू IR, V कितना था हमारा, VCD हमको गिवन है, I2 फाइंड करना है एंड R4 में फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, सिंपली चेयर वाला गेम है, रख देंगे वैल्यू। दिस इज 3 एंड I2 इंटू R इज 3, तो देयरफॉर I2 विल बी हाउ मच, 3/3 इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ओके, सो I2 की वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 1 एम्पियर। तो करंट इन 3 ohm रेजिस्टर लिख देंगे, करंट इन 3 ohm इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम हियर? यस। अब देखिए, पहले 1.5 था, अब इसमें कम हो रहा है करंट। तो देखिए यहां पे करंट क्या है, कम हो रहा है ना। तो पहले इसमें कितना था, 2 ohm में 1.5 था, और I2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, I2 का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। यही रिलेशनशिप काम कर रहा है। देखिए, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर यू कैन सी, है ना, इन द सर्किट डायग्राम यू कैन सी। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो हियर। व्हाई? बिकॉज़ V इज कांस्टेंट है। V कितना है यहां पर फाइंड किया था 3 वोल्ट,
तो V अक्रॉस दिस इज 3 वोल्ट कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ओके, दिस इज 1 एम्पियर. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड करंट इन 6 ओम. तो ये नोट कर लिया आप सबने. ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट, करंट इन 6 ohm. I am sure some of you have done. Okay. देखिए कितना आंसर आता है. फिर चेक भी करेंगे कि our answers here are right or wrong. तो this is I3. तो करंट इन R5 फाइंड करेंगे. यूज वही करेंगे since we know that V is equal to IR VCD. ओके, देन I हमको फाइंड करना है I3 into R5. तो इट इज 3. I3 हमको फाइंड करना है. R5 इज हाउ मच, 6. तो therefore I3 will be equal to 3/6. 1/2 is equal to 0.5. तो therefore I3 हमारा कितना आ गया, 0.5 एम्पियर. Yes, done. Yes, Suhail is writing yes sir, I have done. तो सुहेल ने भी आज आंसर फटाफट कर लिया. ओके, दिस इज 0.5 एम्पियर. ओके, तो देखिए 6 ओम का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था, तो सबसे कम करंट उसमें ही है. तो अगेन दिस रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है ना, I and R are reciprocal when V is constant. तो V is constant here, this is important to note down. अब इनका सबका सम करें, कितना आंसर आता है, तो दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 3 एम्पियर. ओके, तो यहां लिख देंगे करंट इन R5 इज 0.5. तो अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं. चेक. तो करंट इन 2 ओम कितना था, दिस वाज 1.5 प्लस 3 ओम में कितना था, 0. नहीं, उसमें था हाउ मच, 1 प्लस ये आ गया 0.5. इनको ऐड करते हैं तो 1.5 प्लस 0.5 2 प्लस 1 3 एम्पियर. तो टोटल करंट हमारा आ गया 3 एम्पियर. इन तीनों में जो I1 I2 I3 को ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर. दिस मींस आवर आंसर इज 100% करेक्ट. सो हियर इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जब आपको मालूम चल जाता है कि आपका आंसर सही है, और आपको आना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू नो वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. और ये आएगा आपको प्रैक्टिस से. ठीक है, अगर यहां मीटर लगाते हैं हम, तो उसका रीडिंग कितना होगा, 3 एम्पियर. गुड. सो नोट डाउन. आफ्टर दिस आई शैल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क. सो नोट डाउन इट क्विकली. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क. ठीक है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड, ये सब आप फाइंड करेंगे. ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस किए हमने क्वेश्चन में, है ना. एंड इसमें दिस क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है, इट इज नॉट करेक्ट. तो यू हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम. इसको सबसे पहले काम करेंगे, रीड्रॉ द डायग्राम. ओके, बाय मेकिंग करेक्शंस. बाय मेकिंग करेक्शंस. ठीक है, और वी कैन से redraw the correct diagram. This given diagram is not correct, so you have to find out the mistakes and then you have to redraw the correct diagram. इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना. ओके, ये देखिए अब आपकी लर्निंग कितनी हुई है, क्या आपने लर्न करा, उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन. ठीक, तो आई एम श्योर यू कैन डू, कर सकते हैं इसको भी. सो ये आपको सब इसमें फाइंड करना है. यहां 3 ओम है, दिस इज वोल्ट मीटर V1, दिस इज वोल्ट मीटर V2, एंड ये हमारा रेजिस्टर्स दिए. So I am sure you will solve this question and the question. I shall be happy if you attempt the question and get the right answer. So thanks to all of you. Continue to save water for generations to come. Continue to save environment, because सिर्फ पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लाना और सिर्फ पैसा कमाना is not life. पढ़ लिख कर पैसा कमाना, बड़ी सी यहाँ गाड़ी लेना और कंफर्ट्स को एंजॉय करना is not life. Life is sharing. जो हम अच्छी चीजें दूसरों से शेयर करते हैं, और जब हम आसपास की चीजों को सुरक्षित रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. ओके, यस, कंजर्व एनवायरनमेंट एंड हेल्प द
nation. So thanks to all of you. God bless you. If you like this video, do press like button and share. So thanks to all of you.